उसके अलावा ये भी देखा है कि उनमें काफ़ी शायद डायरेक्शन शायद ना हो, अपने आप को लेकर ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती हर एक। Ayushman, hi, my name is Ravi and I'm from Zing. Yeah, आई कांट सी यू। your center, in your center. ओह, आप तो नीचे बैठे हो। मेरा सवाल आपसे ये है जी। कि आपने ऐसा क्या देखा यंगस्टर्स के अंदर कि मुझे इस वक्त मुझे बुक लिखना चाहिए, क्योंकि आप एक ग्रोइंग स्टेज पर हो और आप काफ़ी कम उम्र के हैं, तो आपने क्या देखा ऐसा यंगस्टर्स के अंदर कि मुझे लिखना चाहिए इस वक्त बुक एक। आपको लगता होगा कि शायद इतनी जल्दी मुझे बुक नहीं लिखनी चाहिए क्योंकि अभी मेरा करियर की शुरुआत हुई है बॉलीवुड में। लेकिन ये मेरे अचीवमेंट्स के बारे में तो है ही नहीं, ये मेरी स्ट्रगल्स के बारे में है। जितनी स्ट्रगल मैंने की है, चाहे रेडियो में की हो या टेलीविजन में की हो या अब फिल्मों में हो रही है, इट्स लाइक अ नेवर एंडिंग स्ट्रगल इन दिस इंडस्ट्री बिकॉज नथिंग इज़ परमानेंट हियर। सब कुछ प्रेजेंट में होता है, जो अभी वर्तमान है लोग उसी को देखते हैं, पहले क्या था और आगे क्या होगा किसी को पता नहीं होता यहाँ पर। तो मैंने ये देखा कि जो अभी युवा इस शहर में आ रहे हैं, मुंबई में आ रहे हैं, उनमें काफ़ी ऊर्जा है, काफ़ी पैशन है और उसके अलावा ये भी देखा है कि उनमें काफ़ी शायद डायरेक्शन शायद ना हो, अपने आप को लेकर ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती। हर एक अपने आप को एक्टर समझता है हिंदुस्तान में, ऐसा हर एक अपने आप को क्रिकेटर समझता है और एक्टर समझता है। ये बहुत ज़रूरी है। हर कोई बैटिंग करता है, बॉलिंग करता है और एक्टिंग तो हम ऐसे ही कर लेंगे। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो लोग आपको देखकर काफ़ी क्रिटिकल होते हैं। तो अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को एक ऑब्जेक्टिव व्यू पॉइंट से देखना बहुत ज़रूरी है और वो शायद कुछ पॉइंट्स मैंने इस किताब में लिखे हैं। तो या आयुष्मान, हम समझ लें कि यू हैव रिटन ए बुक टू टेल नॉट टू सेल, राइट? मतलब आपने कुछ बताने के लिए आपने बुक लिखा है, या ना ऑफ कि कोर्स बताने के लिए लिखा। मैं ओके। कुछ नॉट टू सेल बट टू टेल फॉर श्योर। या Hello, sir. Was there a time in your struggle during your journey when you had a series of failures and even though momentarily you thought of giving up, but you didn't? And what was the motivation behind it? I read this book called Outliers once, and it says that if you spend some like 10 years in a particular profession and you become habitual of doing that thing, and I guess I've been doing this since childhood. I've been doing theater, music since childhood. I've been doing theater and music since childhood, and I was very confident about my craft when I came to Bombay. Not really. I was not very sure about my looks, by the way. Never. But yeah, when I came to Bombay, I was cracking almost every audition. But sometimes they used to say, नहीं यार, इसका कोई accent पंजाबी आ रहा है, नहीं इसकी eyebrows बहुत बड़ी हैं. मतलब I used to get comments like those. But having said that, I think I was never underconfident about my craft. It was just that, I think life is a kind of musical chairs. When the music stops, the chair should be next to you. And I think in this field, everybody's talented. It finally boils down to the choices you make. That's about it. Ayushman, here. Yeah, yeah. Hi, my name is Akshay, and ma'am, sir, congratulations for your book. Thanks. Sir, myself, I am also an actor, and I've been the first runner-up of the show India's Best Cinestar Ki Khoj, which you judged. So my question to you is, why our industry is so unpredictable when we go for auditions? So even after completing a project into acting, why there's no recommendation coming up, or why we have to again fight back for the next work, and again we have to stand up, and again we have to prove that yeah, we can act, and again audition. So I'm sure I'll get the answer from this book, but just wanted to ask you this. Tell that. No, you go ahead. In fact, there's a complete chapter on this. I've said that like life is very random. You'll see a lot of people who are talented than you, and you'll see them struggling. And you'll also see a lot of people who are less talented than you, and they'll be doing better than you. So I think you should accept that randomness of life. I think you're honing your own craft is the only thing which is in your hands. उसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते. So I think it's as I said, you have to look out for opportunities for sure. And you just have to be prepared. I think success is when preparation meets opportunity. And there's no dearth of opportunities in the city. You just have to be prepared, that's it. आयुष्मान, हाल ही में अमिताभ बच्चन ने आपको लेटर लिखा था और आमिर खान ने जो है एक इंटरव्यू में कहा कि आपकी एक्टिंग उन्हें काफ़ी पसंद आई और आपकी फिल्म उन्होंने देखी और फिल्म काफ़ी पसंद आई है। तो क्या कहना चाहेंगे जब दिग्गजों से आपको इस तरह के कमेंट्स मिलते हैं आपके शुरुआती करियर में? जी बिल्कुल, ये काफ़ी ओवरवेलमिंग था। और जब भी आप मुंबई आते हैं तो आप एक इंसान को अपने सामने रख कर आते हैं, अमिताभ बच्चन है। और मुझे लगता है वो इंडियन सिनेमा के सचिन तेंदुलकर हैं, क्योंकि वो अभी तक नॉट आउट है।
क्योंकि उनके कंटेम्प्रेरीज आपको फिर भी नज़र नहीं आएंगे। अमिताभ बच्चन अभी तक हर साल कम से कम 2 से 3 फिल्में करते हैं, टेलीविजन शोज़ पर आते हैं, और अगर आपको उनसे कुछ लेटर मिलता है, ख़त मिलता है, या फिर उनकी इंकरेजमेंट मिलती है, तो दैट्स अ ह्यूज थिंग। और आमिर खान की तरफ से भी एक आर्टिकल आया था जिसमें उन्होंने बोला था कि वन ऑफ द हिज, आई थिंक इट वाज कॉल्ड द परफेक्शनिस्ट पिक्स, उन्होंने मेरे कंटेम्प्रेरीज के नाम लिए थे, हम 3-4 लोग थे जिनकी पिक्चर्स थी। So I think it's very overwhelming, yeah. And the best part about the industry is that every Friday the perception changes, and I'm glad the last Friday was mine. ने बोला कि हर शुक्रवार हर एक की एक अलग परसेप्शन बन जाती है इस इंडस्ट्री में, और मैं आई एम ग्लैड कि आखिरी शुक्रवार मेरा था। लेकिन आदित्य चोपड़ा ने मुझे ये बोला था कि इतने कम समय में, 1 महीने के अंदर, किसी की किस्मत का फेरबदल इतना बड़ा नहीं होता है। सो आई थिंक एज आई सेड कि इस किताब के अंदर मैंने अपनी सक्सेस और फेलियर दोनों के बारे में लिखा है, एंड आपको पढ़ के काफ़ी अच्छा लगेगा। Okay, Ayushman, yeah. Last question, please.